the basics of the power system. What are the different units? I told the first unit was the power system analysis. Second unit it was about the load frequency control. Third unit it is about the excitation or voltage control. Then finally the economic dispatch. Either you study the economic dispatch or you study the load frequency, or whatever you do the planning of the power system. Say we want to plan the power system for next 20 years. Presently, suppose our installed capacity is 400,000 megawatt, and if we want to plan for the next 10 years, then we know in the next 10 years the power is going to be, demand is going to be twice of the present. So presently it is 400,000 megawatt, it is going to be the 800,000 megawatt. In the next 10, if you want to find out for the 20-year planning, then again it is going to be double, means 1600,000 megawatt. So accordingly, whatever if you are going to plan the power system or you want to extend the generation, you have to extend the transmission, you have to extend the distribution, everything you have to extend because demand is going to increase. So until unless you know the what is the present status, you cannot perform the future planning. So either it is a planning, or if you want to do the economic analysis. Economic analysis means suppose one generator is giving the power at the rate of say 5 rupees per unit, another generator is giving at the rate of 3 rupees per unit. From which generator power is to be taken out? 3. So this is the economic dispatch. So until unless we know what is the normal running at normal status, at when any generator is running at normal, then what is the power pricing? Because power price depends upon how much power is being taken. Suppose any generator is of 100 megawatt installed capacity, and if you are taking only 2 megawatt, it will be very costly. If you are taking in place of 100 megawatt, you are taking 120 megawatt. Not only there will be overloading, but in addition to the overloading, there is going to be uneconomical also. So, yes please. So, so whatever, similarly, if you want to going to study the stability analysis, stability means whenever there is a disturbance, then how it will behave. Power is coming from the generation, mechanically power is coming from the shaft, mechanical power is coming, it is converted into the electrical. In between there is a rotor, there is a dynamics. So if there is a demand change, then it affects the stability of the system. Means there is a oscillation, there will be dynamics in the generator. So because of the dynamics in the generator, until unless you know when it is a input is equal to output, say 100 megawatt mechanical power, 100 megawatt output power, at that time what is the frequency? Until unless you don't know what is the power angle at that time, so you cannot study what the power angle going to held if the power demand is more than the power generation. जैसे suppose करिए आप 100 मेगावाट पावर इनपुट आ रहा है, 100 मेगावाट पावर आपका आउटपुट आ रहा है, और पावर एंगल उस टाइम पे 30 डिग्री है. Yesterday I told the difference between power angle and power factor. Power angle is the angle between rotor and rotating flux. In the machine or in the synchronous generator, rotor is moving, rotating flux is moving. The angle between rotor and rotating flux is the power angle. If you draw the more power, the angle is going to be increased. At 90 degree, it is going to be a synchronization. Synchronization may not be there, means there will be instability in the system. When the system is not stable, it means system cannot run without stability. If there is synchronization between rotor and rotating flux, then only the system will run. So as you know, anything, either it is hydraulic system, whether it is a mechanical system, whether it is a human system, until unless you are stable, you cannot perform. You cannot work. So stability is very important, and any type of study, even if the stability is concerned, you have to understand what is the power flow analysis. Means with the help of the power flow analysis, we have to calculate the basic parameters, normal running parameters of the system. What are the various parameters? At voltage is the basic one parameter, voltage, then frequency, then active power, then reactive power. These are the basic parameters, and out of this other parameters are derived. Other means, say in the transmission line, what are the losses,
how much power flow is going to in a particular line. Power flow is different, power injected is different. Power injected at a particular bus, say for example this is the here, this is a bus, it is a bus, it is a bus number 1 or bus number I, it is a bus number J. This is a transmission line. So transmission line, you know, there is a injected power EI, there is a injected power QI, output power PL plus J QL, and there is a this is called the power flow, EIJ plus J QIJ, because here the number of other lines are might be going. So what are the, so now why do we need power flow study when we have the other analysis? जैसा आपने देखा होगा, you have the nodal analysis technique, electrical network अगर आपको solve करना है, you know there is a nodal analysis, there is a KCL, there is a KVL, or there is a Thevenin's theorem, superposition theorem. There are various method by which you can solve any electrical circuit. When you have all the electrical various other analysis to solve, what is the need of this power flow analysis? In case of normal study, say if you want to solve any circuit through the nodal analysis technique, then what is needed? Nodal analysis में क्या चाहिए? There can be a voltage source, there might be some impedances. ये तो होता है, voltage source होगा और impedances होगा, then you will write the equation and you will solve the equation. And those equations are the linear equations. Linear ही तो होता है. Linear equation means you understand what is the difference between linear and non-linear equation? Say y is equal to 2x plus 3 or y is equal to x by plus x square plus e to the power x. Is it linear or non-linear? First equation. Linear. It is a linear equation. And what about this? What about this? It is non-linear equation. So if you draw it, if you plot this equation will be like this equation may be like this, anything. So now in case of normal electrical circuits, you know there is a voltage source and there is a impedance or admittances. So those equations are linear equations, but in fact our load is not in terms of, if you see in the houses, as a domestic consumer, you know your load is, whether load is in terms of resistance or inductance or capacitance, इस फॉर्म में होता है. कभी आपने ऐसा कहा कि हमारे घर का लोड 2 ओम प्लस 3J है, ऐसा कभी कहते हो? इतना रेजिस्टेंस है, इतना एडमिटेंस है, किस फॉर्म में बताते हैं लोड? आपके घर में कहते हैं ना आपका लोड कितना है, तो कैसे बताते हो? वोल्ट नहीं, वोल्टेज तो 220 वोल्ट, दैट इज द फिक्स वोल्टेज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सप्लाई. आपका कहते हैं आपके घर का लोड कितना है, आप बताओ कितना लोड है? 2 kV. हाँ, 2 किलोवाट. KW है किलोवाट. अच्छा, आपके यहाँ कितना लोड है घर पे? पता ही नहीं. क्यों? इतना तो पता रखो कम से कम. इलेक्ट्रिकल घर के अंदर और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फिर कुछ प्रॉब्लम होगी आपसे कहा जाएगा क्या भाई आप बता क्या प्रॉब्लम है, आपको यही नहीं पता लोड क्या है. हाँ भाई, कितना लोड है आपके घर पे? तो लोड इज इन टर्म्स ऑफ द किलोवाट. अच्छा, इंडस्ट्रीज में कोई है जिसपे इंडस्ट्रीज, किसी के घर में कोई फैक्ट्री लग रहा है क्या? हाँ, लोड कैसा होता है? व्हाट इज द लोड ऑफ द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री पे लोड कितना होता है? घुमा भाई. उसमें लोड के अलावा KW एंड KVA पावर फैक्टर भी साथ में बताते हैं. मतलब देयर इज ए एक्टिव लोड एंड देयर इज ए रिएक्टिव लोड. तो हमारा लोड होता है वो, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ active power and reactive power. So when load is in terms of active power and reactive power, and on what active power will depend? Active power किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव पावर किस पे डिपेंड करेगा? बताइए.
एक्टिव पावर, जैसे आपका लोड, सपोज द लोड ऑफ योर हाउस इज 2 किलोवाट, बट हाउ मच पावर यू आर ड्रॉइंग, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट, हाँ पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसके अलावा पावर फैक्टर ठीक है, लेकिन आपने डिवाइस क्या लगाया इसी पर डिपेंड करेगा। आपका लोड आपने क्या क्या उस समय, मिक्सी लगाया, बल्ब दबाया, फैन लगाया, तो वो जो लोड है वो किसके टर्म्स में होता है, उसके अंदर फाइनली तो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस होगा, उसके अंदर सपोज करिए इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, फैन सीलिंग फैन दिस हैविंग सम रेजिस्टेंस, तो ये कितना लोड ड्रॉ करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, हाउ मच, हमें ये बताया द लोड इज ऑफ 60 वाट फैन, द सीलिंग फैन पावर ऑफ दिस इज 60 वाट, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, 60 वाट ही ड्रॉ करे या नहीं करे, इसके अंदर जो बाइंडिंग लगा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कितना मैकेनिकल पावर दे रहा है, मतलब अल्टीमेटली, और वो ड्रॉ वो तो फिक्स है, बट इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द वोल्टेज। देखिए इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, जितना भी रेजिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा, चाहे मॉर्निंग में चलाएं, चाहे इवनिंग में चलाएं, चाहे आफ्टर लंच कभी भी चलाएंगे, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। कभी कभी ये सप्लाई एयर ज्यादा देता है, कभी कभी कम देता है, उसका रीजन क्या है, वोल्टेज का कम, आपका वोल्टेज, मतलब ये लोड कितना कंज्यूम कर रहा है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बीइंग फिक्स्ड। तो हमें निकालना क्या है, बस पे, किसी बस पे क्या निकालना है, हमें सपोज वोल्टेज निकालना है, और ये लोड है, लोड डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन लोड, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, मतलब x डिपेंड अपॉन y एंड y डिपेंड अपॉन x। तो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नॉन लीनियर इक्वेशंस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मींस कितना लोड डिपेंड करेगा, ये इसी पे डिपेंड नहीं करेगा इसका रेजिस्टेंस इंडक्टेंस क्या है, इसलिए हम नोडल एनालिसिस से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नोडल एनालिसिस में अगर पता है उसका रेजिस्टेंस उतना है तो उतना ही रहेगा, वोल्टेज उतना है उतना ही रहेगा, फिर आपको करंट निकालनी होती थी। यहाँ डिपेंड, वोल्टेज भी फिक्स नहीं है, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दैट इज चेंजिंग, एंड लोड इज डिपेंड अपॉन दैट। इसलिए नोडल एनालिसिस या जो हमारी दूसरी टेक्निक थी, आपको थेवेनिन एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन, ये लगा के हम पावर सिस्टम नेटवर्क को सॉल्व कर लें, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज दो इक्वेशंस आर द नॉन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, नाउ अब एंड व्हाट हमें सॉल्व करके करना क्या होता है, अब पावर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे ही नहीं है कि एक बस नंबर 1 बस नंबर 2, देयर कैन बी नंबर ऑफ बसेस और ट्रांसमिशन लाइंस लाइक दिस। So there can be number of buses and number of transmission lines, number of generators, one generator is connected here, another generator is connected here, load is connected here, so number means जैसा आपका पूरा हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ले लें या पावर यूटिलिटी ले लें, तो आपका वन सब स्टेशन, कभी कभी आपने देखा हो जनरेटिंग स्टेशन केवल पावर जनरेट कर रहा है, another bus suppose here in the university there is no generator, only power consumption is there, so somewhere there is only generation, somewhere there can be only load, somewhere can be both, generation भी हो रहा है वहाँ consumption भी हो रहा है। so generation means at each bus, इसको क्या कहते हैं, बस, at each bus there can be generation, there can be load and there can be both। अब उसको सॉल्व करके हम करना क्या है, although we target our fix that this generator will generate power at say 11 kV, so and transmission line this is of say 220 kV, so it means you have to connect the transformer here. Similarly this generator here, there is say for example this is one generator here, say it is generating power at 25 kV and this is 220 kV, so this transformer will be from 25 to 220 kV, यहाँ क्या होगा 11 kV to 220 kV, so that the transmission voltage, transmission side it is a 220 kV. Now it means, now to solve it, if you want to solve it, then we have to understand how the transformer will be represented, ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ द ट्रांसमिशन लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड एंड हाउ द दिस जनरेटर विल बी रिप्रेजेंटेड। अगर हमें ये पता लग गया जनरेटर को इस तरह रिप्रेजेंट करें, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, और
ट्रांसफॉर्मर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है एंड ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इफ वी अंडरस्टैंड दिस देन वी कैन राइट द इक्वेशन एंड वी कैन सॉल्व। सो वी विल सी दैट। एंड एज आई टोल्ड, for solving any network we want what is at each bus, what is P, how much P means active power, what is Q, what is V, what is delta, P Q V delta, कितना एक्टिव पावर इंजेक्ट हो रहा है, कितना रिएक्टिव हो रहा है, कितना वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस। सो अच्छा, इसको सॉल्व, पावर सिस्टम नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम पावर सिस्टम वर्ड में भी आपने देखा होगा, स्टेबिलिटी एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो, हम सिंस द पावर सिस्टम वी कंसीडर इट इज ए बैलेंस सिस्टम, मतलब थ्री फेज, ऑल्दो इट इज ए थ्री फेज सिस्टम बट वी कंसीडर ऑल द फेसेस आर सिमिलर, फेज ए, फेज बी, फेज सी, दे आर सिमिलर, दे आर कंज्यूमिंग द सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम पावर फैक्टर, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द फेस एंगल डिफरेंस। फेस एंगल मीन्स फेस ए का एंगल 0 डिग्री है, फेस बी का 120, देन उसका 240, फेस ए बी सी। इसके अलावा सभी फेस सेम होते हैं, सेम सिमिलर, फेस ए, फेस बी, फेस सी आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट ऑफ द फेस एंगल। उनमें फेस एंगल को छोड़ के सभी चीज सेम है। तो जब सब चीज सेम है तो हम एक ही थ्री फेस को एक फेस आउट ऑफ थ्री फेस, फेस ए बी सी, वी सॉल्व द सर्किट, वी सॉल्व द सिस्टम ओनली फॉर वन फेस। एक के लिए सॉल्व करते हैं और ये बताते हैं सेम करंट विल बी इन द फेस बी, सेम करंट विल बी इन द फेस सी, एक्सेप्ट जो ए में था उससे 120 डिग्री फेस चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी मेक द एनालिसिस और वी सॉल्व द सर्किट ओनली फॉर वन फेस कॉल्ड द सिंगल फेस। तो हमने कोई भी थ्री फेज सिस्टम है उसको पहले तो सिंगल फेज में सॉल्व करते हैं। दूसरा, सिंगल लाइन डायग्राम, फेस बी और सी को हटाकर एक सिंगल लाइन डायग्राम प्लॉट करते हैं। जैसे हमने ये प्लॉट किया था अभी, एक जनरेटर, दूसरा जनरेटर, तीसरा जनरेटर, उससे एक लाइन तो आ रही है, थ्री लाइंस। एक्चुअली तो थ्री फेज है तो थ्री लाइंस आनी चाहिए, हम एक ही दिखा रहे हैं क्योंकि फेस ए को दिखा रहे हैं। तो देयर इज ए सिंगल फेज, वी सॉल्व इट फॉर द सिंगल फेज एंड वी ड्रॉ द सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम से फिर हम उसको सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। दैट वी आल्सो डिस्क्राइब हाउ द सिंगल लाइन डायग्राम इज कन्वर्ट टू द सर्किट डायग्राम। और इसके अलावा पर यूनिट सिस्टम में सॉल्व करते हैं। पावर सिस्टम नेटवर्क इज सॉल्व इन पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब क्या है, पढ़ा इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में आपने पढ़ा होगा पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम मतलब बेस मान लेते हैं। जैसे हमारा वोल्टेज 11, जनरेटर का वोल्टेज 11 kV है तो 11 kV को कहा जाएगा 1 पर यूनिट। अब जब वो 11 से 11.5 होगा तो 11.5 मतलब 11.5 डिवाइड बाई 11, तो 1 की जगह हो जाएगा 1.05। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज को हमने बेस मान लिया। इसी तरह एक्टिव पावर को बेस मान लिया। 100 MVA, सपोज करो 100 मेगावाट का जनरेटर है, 100 मेगावाट इज 1 पर यूनिट, और ये पर्टिकुलर टाइम पे सपोज 90 मेगावाट पावर दे रहा है, 90 मेगावाट, तो हम क्या कहेंगे 0.9 पर यूनिट, पावर इज 0.9 पर यूनिट। ऐसे ही ट्रांसफार्मर का सपोज 11 kV टू 33 kV, तो 11 kV को 1 पर यूनिट कहेंगे और दूसरे साइड में 33 kV को 1 पर यूनिट कहेंगे। तो हमारा यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। उसमें ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में कितना है, सेकेंडरी में कितना है, वो सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो व्हाइल डूइंग द पावर फ्लो एनालिसिस we convert everything into per unit or we do the single phase for one phase and we draw the single line diagram। ये बेसिक चीज हो गई जो सभी में होता है। ओके, तो यहाँ तक जो बताया है इसमें से कुछ पूछना है पूछना है। इसको जो मैंने कहा पावर फ्लो एनालिसिस, सेम इट इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट एनालिसिस। दिस स्टडी इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट एनालिसिस, power flow analysis, load flow study, power flow study, anything you can say, सबका मतलब एक ही है। So now अब देखिए at particular number of bus, say at bus number ith number bus
पावर जनरेटेड दिस इज द एक्टिव पावर, दिस इज द रिएक्टिव पावर। एक जनरेटर लगा किसी ith बस में, एक जनरेटर लगा है, उसका पावर PGI JQGI, एक्टिव पावर G क्यों का है, जनरेटेड पावर है, I क्यों का है, बिकॉज इट इज एट द ith बस। जैसा भी बनाया था 1 2 3 4 5 बसेस था, हर एक बस में सपोज किसी बस में जनरेटर लगा है, किसी पे नहीं लगा है। अगर लगा है, अगर ith बस में जनरेटर लगा है तो हमने इसको कहा PGI + JQI। अच्छा, उसी बस में लोड भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर लोड है तो उसको हमने कहा PLI JQI, L फॉर लोड, ith बस का। तो अगर उस बस में सपोज ऑन वन बस देयर इज ए जनरेटर एंड देयर इज ए लोड, तो जनरेटर में सपोज 100 मेगावाट आई हो और 80 मेगावाट आपकी कंज्यूम हो गई वहीं पे, तो 20 मेगावाट कहाँ जाएगी, 20 मेगावाट विल बी इंजेक्टेड इनटू द नेटवर्क। जैसे सपोज करिए आपका फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट है और वो 250 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा है, 250 मेगावाट और 10 MVAR रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है। अब उसका लोकल लोड जो हमारा थर्मल स्टेशन थर्मल पावर है, सपोज वहां आपका 0.1 मेगावाट अपना कंज्यूम हो गया, या उस एरिया में नियर बाई एरिया में वो 2 मेगावाट दे रहा है, तो 100 - 2 98 मेगावाट कहाँ होगा, कहाँ जाएगा, नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क में वो वहाँ कंज्यूम हो गया, बकाया नेटवर्क में चला गया। ऐसे ही पानीपत थर्मल पावर प्लांट है, सपोज 250 मेगावाट के 5 है और वहाँ लोकल पानीपत में लोड लगा, उसी बस पे जो लोड लगा है, सपोज आउट ऑफ 1000 10 मेगावाट आपका लोड कंज्यूम हो गया, तो 1000 - 10 वो नेटवर्क में चला गया। वो नेटवर्क में जैसे जहाँ जनरेटर नहीं है, सोनीपत यहाँ जनरेटिंग स्टेशन नहीं है, तो नेटवर्क में आता है, नेटवर्क से जहाँ जहाँ लोड कनेक्टेड है उसमें जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जनरेटेड पावर माइनस लोड पावर PG - PL QG - PL QL, ये क्या हुआ, नेट इंजेक्टेड पावर इनटू द नेटवर्क। जैसे हमारा ये था ना S1 क्या है, इस पे जनरेशन जितना ये जनरेट कर रहा था माइनस जितना लोड लगा था, वो नेट पावर हमारा किस में चला गया, नेटवर्क में चला गया। तो नाउ दिस S1 S2 S3 और यू कैन से SI that may be equal to S1 S2 S3 S4, दिस इज द नेट इंजेक्टेड पावर टू द, तो इसके अंदर चला गया। ये पावर कहाँ जाएगा, क्योंकि लोड तो हमने इसके साथ ही कंसीडर कर लिया। जहां जनरेशन नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, P0 Q0 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इंजेक्टेड पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है। अगर केवल लोड लगाया तो इंजेक्टेड पावर भी कंसीडर इंजेक्टेड पावर एज ए पॉजिटिव, और जो ले रहे हैं लोड पावर एज ए नेगेटिव। तो हमारा ये नेगेटिव जनरेशन नहीं है तो ये माइनस PLI - QLI हो जाएगा। लोड नहीं है तो ओनली PGI + JQGI हो जाएगा। दोनों लगे हैं तो ये हो जाएगा। तो आपका नेट S1 से एक जनरेटर से ये जा रहा है, इससे ये जा रहा है, S1 S2 S3 S4, वेयर दिस विल गो, सम ऑफ देम, ये पावर कहाँ चली गई, कुछ आप इसमें लॉस भी तो होगा, ये तो प्लस माइनस कंज्यूम कर दिया, बकाया लॉस में से, बिकॉज जनरेट लोड और जनरेटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, बिकॉज सम ऑफ द पावर शुड बी इक्वल टू प्लस एंड माइनस, कुछ प्लस थी कुछ माइनस थी प्लस लॉसेस थी, सबको मिलाकर नेट पावर है 0, मतलब जनरेशन इक्वल टू द लोड प्लस लॉसेस, लोड और लॉसेस को माइनस करता है तो सम ऑफ देम इज इक्वल टू 0, अलजेब्राइक सम इज 0। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जैसा ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड लाइक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को, आपने पढ़ा ना पावर सिस्टम 1 में, टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क और कैसा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन जैसे भी है, और इवन इफ इट इज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 250 किलोमीटर से ज्यादा है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन भी, पाई नेटवर्क मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली पाई नेटवर्क, याद है कि नहीं याद है, पाई नेटवर्क के रूप में करते हैं। पाई मतलब ऐसे ये लाइन है, इसमें ये सीरीज में और इधर दोनों तरफ कैस्टर लगा है, गेटिंग दिस, याद है कि नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन जैसे तो एक कंडक्टर जा रहा है, स्टैंडर्ड कंडक्टर जा रहा है, उसकी इम्पीडेंस और इसकी एडमिटेंस, is this point clear or not? Yes sir. Yes sir. So this transmission line is represented by this pi network, this transmission line represented by pi network, this transmission line is represented by this transmission line represented by this, like this.
अब रोक को घुमाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ कनेक्ट हो सकता था। ट्रांसफॉर्मर को कैसा, ट्रांसफॉर्मर का पता है इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर? ये तो होता है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। तो इसमें दिस इज स्मॉल, इसको नेग्लेक्ट मार लें तो ये R1 X1 ये, लेकिन टर्न्स रेशियो A/1। तो अगर यहाँ वोल्टेज सपोज ये N1/N2 10 है, यहाँ वोल्टेज अगर सपोज करो ये सेकेंडरी साइड में 220 है, तो यहाँ कितना होगा? अगर टर्न्स रेशियो इसमें है N1/N2 इजिकल टू A इजिकल टू V1/V2, तो ये अगर 220 है V2, तो V1 कितना होगा? V1 विल बी इक्वल टू AV2। ऐसे तो होता है। ऐसे ही अगर यहाँ रिएक्टेंस है कुछ X है, तो ये रिएक्टेंस रिफर्ड ऑन द प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड में रिएक्टेंस X2 है, तो रिफर्ड ऑन द प्राइमरी साइड कितनी होगी? X1 AX2 है हाँ AX2। और अगर एडमिटेंस के मतलब एक या दो, यहाँ ए का है AX2 हो गया, A स्क्वायर, ये नहीं A स्क्वायर। हाँ, अब फॉर्मूला ध्यान रखो ना उसका, ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा होगा मशीन में। अगर ये एडमिटेंस है तो रिफर्ड एडमिटेंस ऑन दिस साइड इज y, व्हाट इज द एडमिटेंस विल बी ऑन दिस साइड? y/A स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो मैंने आपको अभी फिगर दिखाया, ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उसमें टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंगली जो रिएक्टेंस थी, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस सपोज प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में इतना दिखा रहा है, बट वी वांट टू रिफर इट ऑन अनदर साइड, तो हमें बार बार रिफर करना पड़ेगा। इसका मतलब देयर शुड बी सम मेथड दैट a transmission line can we represent the transmission line also, ये ट्रांसफार्मर, अगर हम ट्रांसफार्मर भी if we can represent transformer also like this, जैसे ट्रांसमिशन लाइन तो आपने देखा, we can represent it into pi network, अगर हम ट्रांसफार्मर भी ऐसे रिप्रेजेंट कर लें तो पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? या तो सीरीज इंपीडेंस होगा, या शंट एडमिटेंस होगा, और सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस केस वी विल कंसीडर द करंट सोर्स, इन सम स्टडी वी कंसीडर एज वोल्टेज सोर्स इन द करंट सोर्स। तो इसका मतलब we must know how to convert voltage source into current source। अगर वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करें, और ट्रांसफार्मर को हमने इक्विवेलेंट पाई कैसे बनाई। अगर एक बार ये बन गया तो इसका मतलब क्या है, हमने सोर्स करंट सोर्स पता है और इम्पीडेंसेस और एडमिटेंसेस पता है, एंड देन वी विल सी हाउ इट इज सॉल्व। हमारा पर्पज क्या है? our पर्पज इज टू कन्वर्ट द होल नेटवर्क ऑफ द सिस्टम इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। जैसे सपोज 100 बस सिस्टम है, तो 100 इक्वेशन लेके आप, और वो भी नॉन लीनियर इक्वेशन हो, अभी मैंने कहा था y इजिकल टू XY प्लस x स्क्वायर प्लस e⁻x प्लस साइन x। अगर ऐसी इक्वेशन, ऐसी एक इक्वेशन भी दे दें वही सॉल्व नहीं होगी, और ऐसी 100 इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर सकते हो। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वी मेक द मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द y बस और z बस। तो y बस और z बस बना के मतलब हमारा क्या होगा, पूरा पावर सिस्टम नेटवर्क है वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। देन वी नो हाउ टू सॉल्व द मैट्रिक्स। तो यही हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, हाउ टू फॉर्म द y बस। युवराज देन वी विल डिस्क्राइब हाउ द, जम्मा को जब बंद करिए, तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ रुक सकते जा हैं। बनी यस, y bus, then how to write the program for forming the y bus, that we will describe in the next class. Anybody who want to ask any जम्मा को question? जब करिए, इसको थोड़ा, हाँ भाई क्लास में anybody who want to ask the question you can ask. हाँ, any question? Okay, thank you very much. थैंक यू सर।
have to